Hi students, today we will study the chapter verb. I have already told you that it is an additional chapter. That means it is not given in your book. So I have prepared it separately on the basis of 6th class grammar book. Okay. So I have taken the important points from that one. On that base I have made these notes. Okay. I have already sent the notes to you. You have to write it in the fair copy and follow the all the rules it has written, all the definition or whatever notes it is written in the copy. Okay. And I will also give the exercise related to this chapter. We will have to try to do it. Okay. Now let us see what is verb. Okay, so in till 6th class we have studied a verb is an action word. No, if it is showing an action, then we will say it is a verb. Okay, but it is not the complete definition for verb. Okay, so it has got a wide meaning. Okay, what is that wide meaning? So it is not only action. Definitely it is shows an action, but it's not only action, it is also showing a state of being. Okay, and also a possession. What in being possession? Ownership. Okay, so we can say a word that shows an action, state of being, or a possession. We can here not comma, you can add there or here. Okay, and a word that shows an action or state of being. State of being means what? एक वस्तु का स्थिति या एक व्यक्ति का स्थिति अभी का फिलहाल क्या चीज़ है अभी वो ऐसा बता रहे हैं ना. So it is called a state of being. So and possession, if it is verb showing the ownership of somebody, then we can say it is a possession. Okay, so it's called a verb. So verbs are used in three cases, which one for showing actions, for showing state of being, and for showing possessions. So let us see in detail. What's that? First, action. Normally we are using walk, talk, eat, do. If it is showing an action, we can say it is an action word. Okay, so normally that will be have already studied. And also it is called a main verb. It's called a principal verb या main verb. इसको ये भी कहता है main verb या प्रिंसिपल वर्ब. ओके, ये भी कहता है. ठीक है. एंड फाइनाइट वर्ब ऑल्सो इट इज कॉल्ड. फाइनाइट वर्ब मीन्स क्या होता है? इसको फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं. FINITE वर्ब ये भी कहता है. इसका मतलब इसको फाइनाइट वर्ब जिसको कहता है, जिस वर्ब को टेंस के हिसाब से उसको चेंजेस होना चाहिए या नंबर के सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से. फॉर एग्जांपल अभी वॉक प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टेंस यूज़ करने के लिए वॉक्ड लगाना होगा. उसका मतलब ईडी उसमें लगाना पड़ता है. उसमें चेंज हो गया, उसको टेंस चेंज करते समय उसको वर्ब को भी चेंज होता है. ठीक है. या नंबर के सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से अगर सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट में हम सिंगुलर ही वॉक्स लगाना पड़ेगा या वी वॉक. अगर सिंगुलर हो तो एस लगाना पड़ेगा, प्लूरल हो तो एस नहीं लगाना पड़ेगा. इसका मतलब जो वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंजेस होना चाहिए, उस वर्ब को क्या बोलता है? फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब ऐसा बोलता है. ठीक है. सो वर्ब्स ऑफ एक्शन ऑल्सो भी इसको कहता है. ठीक है. द स्टेट ऑफ बीइंग. State of being, it shows the condition of a subject or person or animal, whatever it is. Okay, condition means अभी का स्थिति क्या है उसका. For example, she was a player. So here she is not doing any action, लेकिन वर्ब इधर है. वर्ब was है लेकिन शी कोई उसमें एक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन शी के बारे में कहता है वो क्या था, क्यों क्या थी. ओके, सो इसके बारे में कहता है. सो इसके एक चीज़ का अवस्था बता रहे या स्थिति बता रहे, उसको क्या बोलता है? स्टेट ऑफ बीइंग बोलता है. सो वर्ब्स आर यूज्ड फॉर शोइंग वर्ब्स ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग ऑल्सो. सो मेनली वी आर यूज्ड बी फॉर्म्स. बी फॉर्म्स में क्या होता है? बी फॉर्म्स, बी मीन्स एक स्टेट है, अवस्था दिखा रहा है. ठीक है. सो इसका अलग अलग फॉर्म है. प्रेजेंट टेंस में ईस आम आर यूज़ करेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ईस लगाएगा, आई होता है आम लगाएगा, प्लूरल हो तो आर लगाएगा. ईस आम आर. वास वर्ब पास्ट टेंस के लिए यूज़ करेगा. बीन
परफेक्ट पासिव वॉइस में यूज़ करेगा, बीइंग कंटिन्यूस टेंस में, देन विल बी फ्यूचर में, शाल बी, यह सब क्या होता है बी का फॉर्म्स है। ये फॉर्म्स किस के लिए यूज़ करेगा, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यूज़ करेगा। देन हाँ पोसेशन, हाउ फॉर्म्स इसमें यूज़ करें, ऑनरशिप दिखाने के लिए क्या उसको यूज़ करें, हाउ फॉर्म्स। हाव को 3 फॉर्म्स होता है, विच वन, हैस, हाव, हार्ड। हास और हाव प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेगा, हार्ड इसमें यूज़ करेगा पास्ट में यूज़ करेगा। अगर पास्ट पार्टिसिपल करना हो तो हार्ड हार्ड यूज़ करेगा ना। सो ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं, एक ऑनरशिप दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही हास ए कार, ही हास ए कार मतलब क्या होता है, इधर ही कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ही का अवस्था नहीं बता रहा है, उसमें क्या बता रहा है ही के पास क्या था, या कि ही किसका ओनर था, किसका ओनर है, कार का ओनर है, ठीक है। सो इसके लिए क्या बोलता है, ओनरशिप दिखाने के लिए हाव फॉर्म्स यूज़ करें, हाव, हास या हार्ड उसका यूज़ करेगा, हार्ड पास्ट टेंस के लिए यूज़ करेगा, हाव और खास प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करेगा। और फ्यूचर में हुआ था विल हाव यूज़ करेगा, विल हाव, ओके। किस पे यूज़ करेगा, फ्यूचर टेंस में, ओके। सो वी हैड मेनी टॉयज, दैट मीन्स हमारे पास बहुत टॉयज था, उसका हम पास्ट में किस चीज़ का, किसी चीज़ का ओनर था, ठीक है। देन दे ऑल आर कॉल्ड मेन वर्ब्स, दिस ऑल आर कॉल्ड विच वन, मेन वर्ब। इसको भी फाइनाइट वर्ब के मेन वर्ब बोल सकता है, स्टेट ऑफ बीइंग की भी मेन वर्ब बोल सकता है, पोसेशन को भी मेन वर्ब बोल सकता है, ठीक है। देन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब को हेल्पिंग करने के लिए इन टेंस पढ़ते समय हम यूज़ करा था, मैं ऑक्सिलरी वर्ब का काम यूज़ दिखाया देखे थे ना। सो व्हाट्स दैट, फॉर मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हाट यू विल यूज इज, आम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म। इसमें आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब होगा और इस आम आर क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब बनता है। अगर वो अकेले यूज़ करेगा तो वो मेन वर्ब बन जाएगा, लेकिन बीइंग बी या स्टेट ऑफ बीइंग हो जाएगा। इधर सी इधर शी वास ए प्लेयर, इधर इसके बाद कोई आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये अकेले यूज़ करें, ओनली वी आर यूजिंग ओनली बी फॉर्म्स इन अ सेंटेंस फॉर शोइंग व्हाट स्टेट ऑफ बीइंग, ओके। अगर इफ इट इज़ यूज्ड इन सिंगुलर इन अ सिंगल सेंस, नॉट सिंगुलर सिंगल, अगर बी फॉर्म्स सिर्फ यूज़ करेगा तो क्या होगा, वो स्टेट ऑफ बीइंग होगा। और बी फॉर्म्स कोई मेन वर्ब के साथ यूज़ करेगा, वो क्या बनेगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी बन जाएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन सा है, बी फॉर्म्स विदार शी इज सिंगिंग, फॉर एग्जाम्पल इधर इस, इधर किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, एक मेन वर्ब के साथ यूज़ किया, इसलिए वो क्या इस क्या बन गया, इस ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब बन गया, ये मेन वर्ब बन गया, ठीक है। देन दूसरा है डू फॉर्म्स, डू फॉर्म्स हम यूज़ करें किस लिए, डू डस डिड, ये इसका डू फॉर्म्स का डिफरेंट फॉर्म्स। डू और डस प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेगा, सिंगुलर हो तो डस यूज़ करेगा, प्लूरल हो तो डू यूज़ करेगा, एंड पास्ट में तो डिड यूज़ करेगा, ओके। एंड for what is it is use of this for making questions and negatives in simple present or past tense. Already we have studied when we studied about the past tenses. I have already explained that thing. We are using helping verbs is do or does did for you showing what questions and negatives in present tense and past tense, okay. Then next one, how forms. हाउ फॉर्म्स सिर्फ यूज़ करेगा तो क्या होगा, ओनली वी आर यूजिंग हाउ फॉर्म्स इट विल बिकम पोसेशन, एंड इफ यू आर यूजिंग हाव और हास और हार्ड विथ अनदर वर्ब इट विल बिकम ऑक्सिलरी वर्ब। फॉर एग्जाम्पल सी इधर, इधर ही हास ए कार, इसके बाद में एक मेन वर्ब नहीं है, सो ये ओनली हास फॉर्म और हाउ फॉर्म यूज़ किया है। सो इन दैट केस व्हाट विल बी दैट, इट विल बी द मेन वर्ब, या इट इज शोइंग ए पोसेशन हियर। अगर हास और हाव दूसरा एक मेन वर्ब के साथ यूज़ करेगा, वो क्या बन जाएगा, वो ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है या हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी इधर वी हार्ड गॉन देयर या वी हाव गॉन देयर, ये हार्ड इज हियर व्हाट, हार्ड इज ऑक्सिलरी वर्ब हियर, नॉट मेन वर्ब। हियर मेन वर्ब क्या होता है, गॉन है। अगर ये if it is used with an another verb, it will become what, has how forms will become an auxiliary verb, okay. Then modal auxiliaries that already we have studied in the last lesson, okay. modal auxiliary क्या क्या होता है, और modal auxiliary भी एक मेन वर्ब का पहले यूज़ करें, डिफरेंट फॉर्म्स मीनिंग बताने के लिए, नो।
So I have already explained that one. Now come transitive and intransitive verb. What is that? A verb that needs an object to complete its meaning is called a transitive verb. For example, see there, she sings. She subject है, sings verb है. इसको she sings what? इधर क्या होता है? मीनिंग इनकम्प्लीट है. शी सिंग्स व्हाट? ए सॉन्ग. सो sings is verb and song is a object here. But in this a verb that does not want an object, अगर ऑब्जेक्ट उसको नहीं चाहिए तो उसको क्या बोलेगा? इंट्रांसिटिव वर्ब बोलेगा. फॉर एग्जाम्पल शी क्राइड लाउडली. द शी सब्जेक्ट है, क्राइड वर्ब है, लेकिन क्राइड वाट? नो आंसर. उसको क्या, इसको ज़रूरत नहीं है, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. उस तरह का सब वर्ब को क्या बोलेगा? इंट्रांसिटिव वर्ब बोलेगा. सो जो वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए उसको क्या बोलेगा? ट्रांसिटिव वर्ब बोलेगा. और जो वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उसको क्या बोलेगा? इंट्रांसिटिव वर्ब बोलेगा. ठीक है. देन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. आई टोल्ड यू ऑलरेडी देयर. फाइनाइट वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होगा और सब्जेक्ट के, और ए वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. अगर टेंस के हिसाब से टेंस चेंज करेगा तो वर्ब को चेंज होना चाहिए, या नंबर, सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से वर्ब को चेंज होना चाहिए. उसको क्या बोलेगा? फाइनाइट वर्ब बोलेगा. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट. नो. सो शी लाफ्ड, मेन वर्ब होगा. ठीक है. लाइक ही लाफ्ड लाउडली, पास्ट टेंस हो गया. वी आर स्टूडेंट्स. ये लाफ प्रेजेंट टेंस है, इसलिए पास्ट टेंस यूज करने के लिए लाफ्ट ईडी लगाना पड़ता है. ठीक है. सो इसमें इट हैज गॉट सम चेंजेस. दैट मीन्स इट इज चेंज्ड इनटू ईडी फॉर्म्स. नो. सो वी आर स्टूडेंट्स. अगर ईस इधर लगाएगा तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वी प्लूरल है इसलिए आर लगाना पड़ता है. ठीक है. या आम भी नहीं लगा सकते. सो ये सब्जेक्ट, ये नंबर बढ़ गया, इसलिए वर्ब में भी चेंजेस हो गया. इसी को क्या बोलेगा? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. ठीक है. ए वर्ब दैट डू नॉट वांट, ए वर्ब दैट डज नॉट वांट, डू नहीं है, डज नॉट लिखना है वहाँ पे. ठीक है. वर्ब दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. आप सब्जेक्ट और वर्ब टेंस हिसाब से नहीं चेंज हो रहा है, या सब्जेक्ट के हिसाब से या टेंस के हिसाब से एक वर्ब जिसको चेंजेस हमेशा कोई भी प्रेजेंट में भी सेम रहेगा, पास्ट में भी सेम रहेगा, फ्यूचर में भी सेम रहेगा, या सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, कुछ भी हो, तो उसके उस वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा. उस तरह को क्या होगा? लेकिन उस सेंटेंस में एक मेन वर्ब होना ही चाहिए. उसको मेन वर्ब होगा और उसके बाद ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगा. ठीक है. सो नॉन फाइनाइट, एक सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब होना जरूरी नहीं है. ठीक है. लेकिन एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है, मेन वर्ब होना बहुत जरूरी है. ठीक है. देन फॉर एग्जाम्पल सी, वी वेंट टू बाई वेजिटेबल्स. इधर हियर वेंट इज मेन वर्ब. ये मेन वर्ब के बिना ये सेंटेंस नहीं होगा. ठीक है. वी वेंट टू बाई, इधर बाई भी एक वर्ब है, टू बाई इधर लगाया है. इसको क्या बोलेगा? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेगा. इसको नॉन फाइनाइट वर्ब. सी इधर, इसको वी वेंट टू बाई. अगर आप इसमें फ्यूचर में सेंटेंस को कन्वर्ट करेगा, वी विल गो टू बाई. ओके. एंड अगर प्रेजेंट टेंस में होगा, वी गो टू बाई. कोई भी टेंस में, अब वी हैव स्टडीड 12 टेंसेस. आप जितना भी टेंस में इसको कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये टू बाई क्या रहेगा? टू बाई ही रहेगा, उसमें कोई चेंज रहेगा नहीं रहेगा. उसको इस तरह का वर्ब को क्या बोलता है? नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब खाली टू फॉर्म्स नहीं है, टू इन्फिनिटिव फॉर्म्स नहीं है. मेनी आर देयर, अबाउट 4 आर देयर. वी विल सी वन बाई वन. ओके. देन another example say the crying boy went outside. सी मे वेंट मेन वर्ब है, द क्राइंग भी एक एक्शन है, लेकिन ये क्राइंग क्या रहेगा? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो हमेशा वही रहेगा. अगर आप इधर जितना भी चेंज करेगा, क्राइंग बॉय विल गो आउटसाइड, वो भी बता सकते हैं. द क्राइंग बॉय
इज गोइंग और गोस आउटसाइड वो भी बता सकते हैं, और द क्राइंग बॉय वाज गोइंग आउटसाइड वो भी बता सकते हैं। सो जो भी टेंस में आप चेंज करेगा, क्राइंग क्राइंग ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, लेकिन मेन वर्ब चेंज होगा, ठीक है। सो इस तरह का जिसको वर्ब का चेंज नहीं हो रहा है उसको क्या बोलेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेगा, ठीक है। देन ही केम आउट ऑफ ब्रोकन विंडोज, इधर केम इज मेन वर्ब है, इधर ब्रोकन ईयर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया है, ये भी एक वर्ब है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या होता है, नॉन फाइनाइट है। सो ही विल कम ऑफ ए ब्रोकन विंडो वो भी बता सकता है। देन ही कम्स और ही इज कमिंग आउट ए ब्रोकन विंडो वो भी बता सकते हैं। ब्रोकन ब्रोकन ही रहेगा, ब्रोकन को कोई चेंज नहीं रहेगा। सो इन दिस सेंटेंस सी अनदर एग्जाम्पल, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, क्या यूज़ किया इधर, वॉकिंग वास भी हम लगा सकते हैं, वॉकिंग विल भी वो भी बता सकते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, ईज होता है, ठीक है। वॉकिंग एक एक्शन है इधर और एक वर्ब है। सो इस वर्ब को चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। सो इन द कितना प्रकार का नॉन फाइनाइट वर्ब वी हैव सीन दैट, ऑन फर्स्ट वन टू इन्फिनिटिव, जिसके पास टू टू लगाता है, टू बाई, टू के बाद प्रेजेंट टेंस यूज़ करें, टू बाई, टू गो, टू गेट, ये सब क्या होगा, टू इन्फिनिटिव बोलता है इसको। सो टू इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब बोलता है। देन नेक्स्ट वन पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करता है, पास्ट पार्टिसिपल। द सेकंड सेंटेंस इधर crying ing form, participle we have already studied in verb forms, I have explained that, which is that which form it is a fourth form now, and fourth form ing form we are using, that's called a past present participle, वो भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। सो and past participle en form, see that this example broken window, okay। so present participle in the first sentence to infinitive form है, सेकेंड सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, थर्ड सेंटेंस में क्या यूज़ किया, पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म, थर्ड वर्ब फॉर्म, ओके। देन जेरंड, जेरंड किसको जिसको बोलते हैं, जेरंड भी आईएनजी फॉर्म में आएगा, लेकिन उसका मीनिंग अलग होगा। जेरंड एक एक्शन नहीं है, एक नाउन के रूप में यूज़ करेगा। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, इधर वॉकिंग वॉकिंग करना एक इधर एक सब्जेक्ट के प्लेस में आया हुआ, या तो ये इट शो इट एक्ट्स एज ए नाउन, ओके, एक नाउन का मीनिंग दे रहा है, तो उसको क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, जेरंड बोलता है इसको। सो ये पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन, if it is used as a noun, so it will be considered as a gerund, okay। So mainly three categories are given there here, your नॉन फाइनाइट वर्ब, टू इन्फिनिटी फॉर्म, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में टू होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, एंड जेरंड फॉर्म, एंड जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों आईएनजी में आएगा, लेकिन देयर बट देयर मीनिंग आर डिफरेंट, ओके। सो द चिल्ड्रन, you have to write down these notes and understand the things clearly. I will send more exercise based on this lesson from chapter from class 6, okay। Thank you.